Hello everyone, welcome back to my channel. So today is class 14 of mental health nursing, and in this class we will discuss about the child psychiatric disorder like attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorder like various pervasive developmental disorder, and the most important that is mental retardation. Right, so start karte hain. The first one, that is ADHD, that is also known as minimal brain dysfunction or neurodevelopmental disorder. So as the name suggests, that is attention deficit hyperactivity disorder. It means there is three main clinical features seen, that is attention deficit, it means inattention, right, hyperactivity and impulsivity. So ADHD, that is more prevalence in boys comparison to female, that is the first important thing. And the key symptoms it is hidden in the name itself, that is ADHD attention deficit. It means the first symptoms क्या होगा, that is inattention, right. So inattention means lack of attention. So inattention में क्या होगा, like inability to give attention to the close details. So like frequent mistakes करेंगे, बहुत ज़्यादा distractibility होगा, like schools में या फिर घर में कुछ में like proper वो attention नहीं कर पाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि जो टास्क है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटेंशन नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है. तो लेट्स सपोज अगर कोई होमवर्क कर रहा है, सो होमवर्क कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन हुआ, उसको छोड़कर कुछ और करने लगा, सो काइंड ऑफ दैट, सो जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो इन अटेंशन, एंड बिकॉज ऑफ इन अटेंशन क्या क्या सिम्टम्स होगा, इनएबिलिटी टू गिव अटेंशन टू क्लोज डिटेल्स, मेकिंग फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स, ऑफकोर्स क्योंकि हम प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो मिस्टेक्स तो होगा ही होगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगी एंड शिफ्टिंग एक्टिविटीज होगी. जो टास्क है वो विदाउट कंप्लीशन अदर टास्क में वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. सो दैट इज द इनअटेंशन, द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर. सेकंड क्या है, दैट इज हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी, सो हाइपर एक्टिविटी में क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी. सो हाइपर एक्टिविटी होगी, जो मोटर मूवमेंट होगा बहुत ज्यादा हाइपर होगा. सो कॉन्स्टेंट रोमिंग इन क्लास एंड डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स, लाइक अनएबल टू सिट स्टिल, एक जगह पे वो आराम से बैठ नहीं पाएगा. सो स्कूल में लाइक वो प्रॉपरली बैठ नहीं पाएगा एंड दूसरे स्टूडेंट्स को भी क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना. एंड लाइक बहुत ज्यादा टॉकिंग एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा लाइक जरूरत से ज्यादा ही वो टॉक करेगा, ठीक है ना. फिजिटिंग लाइक रोमिंग हेयर एंड देयर इन द क्लास, इन द स्कूल, है ना. सो इन द होम ऑल्सो. सो दैट इज द हाइपर एक्टिविटी. कॉन्स्टेंट रोमिंग इन क्लास, डिस्टर्बिंग अदर स्टूडेंट्स, कांट एबल टू सिट स्टिल. सो दैट इज द हाइपर एक्टिविटी. एंड द थर्ड symptoms is impulsivity. So he can't able to control his impulse. So impulsivity होगा. So impulsivity like impulsivity something like acting without thinking. तो बिना कुछ सोचे समझे कर देगा बस, है ना. So like interrupting others, ये तो होगा ही होगा. Plus the main thing is unable to wait for turns. Let's suppose अगर कुछ लाइन लगानी हो किसी चीज के लिए, like let's suppose उसे बस में जाना, लाइन लगा के चलना, तो he or she is not able to wait for his or her turns, कि मेरी टर्न आएगी तब मैं अंदर जाऊंगी. So unable to wait for turns, answering before a question completion, है ना. So आपने कुछ क्वेश्चंस पूछा, क्वेश्चंस कंप्लीट होने से पहले ही वो आंसर देने लग जाएगा. So that is the impulsivity, acting without thinking, है ना. So that is the impulsivity. So inattention, hyperactivity and impulsivity, that is ADHD, right. So this is the like core three clinical features is seen in attention deficit hyperactivity. Sometimes क्या होता है कि hyperactivity ज्यादा predominant होता है, sometimes impulsivity ज्यादा predominant होता है ना. So along with that some other symptoms also seen like irritable, destructive behavior, है ना. Symptoms and the most important thing, this symptoms must be present before age 12. So before age 12 होगा, and like at least in two settings like schools and home, है ना. So then it is known as ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, before age 12 and in two different settings में होना चाहिए, ठीक है ना. So
इसके टाइप्स होते हैं, एडीएचडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी, जिसमें हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी वाले ज्यादा सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, तो लाइक इनअटेंटिव वाले सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, एंड समटाइम्स इट इज बोथ, लाइक इनअटेंटिव भी होगा और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी भी होगा, ठीक है ना। सो दिस एडीएचडी क्या है कि बेसिकली ये बिफोर एज 12 ये स्टार्ट होता है, एंड लाइक 50% बाई प्यूबर्टी क्या हो जाता है, रिमिशन हो जाता है, लाइक क्योर हो जाते हैं। बट द 50% जो बच्चे हैं ना, दे विल डेवलप इनटू सम रिस्की बिहेवियर लाइक सब्सटेंस अब्यूज, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। सो दैट्स वाई आप एडीएचडी बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो कि लाइक 50% तो हो ही जाते हैं ना क्योर, तो जस्ट लेट इट, जैसे जैसे बड़े होंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, 50% कैन गो इनटू द रिस्की बिहेवियर लाइक सब्सटेंस अब्यूज, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो दैट्स व्हाई दिस डिजीज शुड बी ट्रीटेड वेरी वेरी सीरियसली, right? So that is the important part. 50% achieve remission by puberty. The rest are vulnerable to substance use disorder like alcoholism, cannabis disorder at all, antisocial personality disorder, mood disorder. So that's why treating all children of ADHD is something very very important, right? So treatment क्या क्या है? So again the treatment, we have two type of treatment. The first one is the pharmacotherapy and second one is the non pharmacotherapy. So exam में many times the question is asked कि what is the drug of choice for ADHD? So that is the methylphenidate, है ना। So basically जो treatment है वो हमारा stimulant है और non stimulant भी है। So stimulant basically हमारा drug of choice होता है। stimulant में भी जो specific drug है that is the methylphenidate। उसके अलावा like dexmethylphenidate, amphetamine, modafinil, है ना। So that is the stimulant that is used for ADHD. अगर let's suppose if child have seizure disorder or family history of drug dependence like this drug methylphenidate है ना, amphetamine will lead to काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, है ना। सो अगर फैमिली में ये हिस्ट्री पहले से ही है, सीजर डिसऑर्डर पहले से ही है ना, सीजर डिसऑर्डर है उस चाइल्ड को, सो इन दैट केस स्टिमुलेंट्स यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, नॉन स्टिमुलेंट यूज करते हैं। नॉन स्टिमुलेंट में लाइक एटोमोक्सिटिन हो गया, बुप्रोपियोन हो गया, क्लोनिडीन है ना, वेल्लाफेक्सिन, गुआनफिसिन है ना, तो ये सारे ड्रग्स यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्मेकोथेरेपी। नॉन फार्मेकोथेरेपी द यूनिवर्सल दैट इज द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग हो गया, साइको एजुकेशन हो गया, स्ट्रक्चर्ड रूटीन बच्चे को देना है, काम एनवायरमेंट रखना है ना। सो ये कुछ हमारे नॉन फार्मेकोथेरेपी हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Coming to the second disorder that is the pervasive developmental disorder. So pervasive means as the name suggests pervasive मतलब कि it affect many development है ना। So more than one area of development में affect होगा, so that is known as pervasive, like social interaction में problem हो सकता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज पुट अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एंड इसमें बहुत सारे हैं लाइक ऑटिज्म, रेट्स सिंड्रोम, अस्पर्जर सिंड्रोम, हेलर सिंड्रोम, एंड लाइक ये सारे को कंबाइन कर दिया किसमें, दैट इज द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5, है ना। सो फर्स्ट हमारा है ऑटिज्म। सो ऑटिज्म में जैसे हमने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी में हमने 3 सिम्टम्स पढ़े ना, 3 कोर सिम्टम्स, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी, है ना। ऐसे ही ऑटिज्म में क्या है, 3 कोर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट हमारा क्या होगा, इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, the important impairment in social interaction. The second one is the restricted repetitive behavior, and the third one is the impairment of communication and the language, है ना। So that is known as autism disorder, impairment in social interaction, restricted repetitive behavior and impairment of communication and the language. So impairment in social interaction, so socially interact करने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए, of course there should be a proper eye to eye contact होना चाहिए, है ना। So in that
चाइल्ड क्या होगा, देयर इज पुअर आई कांटेक्ट, लैक ऑफ सोशल स्माइल, लाइक सोशल स्माइल बाय 2 मंथ 3 मंथ चिल्ड्रन में आ जाता है. सो सोशल स्माइल क्या होगी, लैक होगी. हम किसी को देखते हैं लाइक वी गिव द स्माइल, सो लैक ऑफ सोशल स्माइल. एंटीसिपेटरी पोस्चर होगा, पुअर अटैचमेंट टू द पेरेंट्स एंड अदर्स, है ना, लाइक पेरेंट्स को कितना केयर दे रहे हैं, स्टिल दे हैव नॉट दैट मच लाइक अटैचमेंट विद देयर पेरेंट्स, है ना. एक्सेसिव रिएक्शन, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एक्सेसिव रिएक्शंस इफ रूटीन्स आर डिस्टर्ब्ड एंड डिफिकल्टी इन मेकिंग द फ्रेंड्स, ये तो हमारा इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन में आ गया. सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेसिव रिएक्शंस इफ रूटीन्स आर डिस्टर्ब्ड, तो उनका ना एक प्रॉपर शेड्यूल होगा कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये मुझे खेलना है, ये मुझे करना है. अगर उनका थोड़ा सा भी रूटीन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा ना, वो बहुत ज्यादा लाइक काइंड ऑफ ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे कि मेरा क्यों हो गया, है ना, बहुत ज्यादा टेंस हो जाएंगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट वो प्रॉपरली फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे, सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स के साथ अच्छा अटैचमेंट नहीं होगा. सो दैट इज द इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन. सेकेंड सिम्टम्स क्या होगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर. सो लाइक रिपीटेटिव प्ले, लाइक एक ही लाइक जो चाइल्ड होते हैं वो कितना इमेजिनेटिव होते हैं ना, लाइक वो एक ही चीज को खेल नहीं सकते हैं, उनको लाइक मल्टीपल टॉयज चाहिए, मल्टीपल एक टॉयज रहता है, फिर स्टिल वो अगर सपोज मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं ना हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए. बट उनमें क्या होगा, इन बच्चे में, ऑटिज्म डिसऑर्डर बच्चे में, दे प्ले रिपीटेटिव, है ना. सो एक ही लाइक सपोज उनके पास कोई भी एक सिंपल टॉय है तो उसी के साथ वो खेले जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक. सो रिपीटेटिव प्ले. स्टीरियोटाइप मूवमेंट लाइक हैंड राइटिंग, है ना, स्पिनिंग, हैंड बैंजिंग, हेड बैंगिंग, है ना. सो काइंड ऑफ दैट स्टीरियोटाइप मूवमेंट होगा. एंड लैक ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में जो हमारे 5 to 6 ईयर 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, इनमें दे हैव वेरी मच इमेजिनेशन, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं. बट this child lack any imagination and higher threshold for pain. This is also very important. उनको ऐसे लगे, ऐसा फील होगा कि उनको पेन ही नहीं होता, है ना, उनको पेन ही नहीं होता, उनको चोट वोट लगती है, उनको पेन ही नहीं होता. दे हैव वेरी हाई थ्रेशोल्ड फॉर पेन, है ना. सो दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर. एंड द थर्ड इम्पेयरमेंट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लैंग्वेज. सो लाइक डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, है ना. सो डिले लैंग्वेज माइलस्टोन, एबनॉर्मल सेंटेंस, है ना. तो लाइक जो मदर है वो बताएगी कि मेरा बच्चा लाइक जो उसको 2 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था लैंग्वेज में, वो 4 ईयर्स पे भी नहीं हुआ है ना. एंड अगर लैंग्वेज आ भी जाता है तो जो सेंटेंस होगा वो इम्प्रॉपर होगा, लाइक सेंटेंस जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, नाउन प्रोनाउन प्रॉपरली अच्छे से यूज नहीं होगा, मैं को तुम, तुमको मैं बोलेगा ना, काइंड ऑफ दैट. सो एबनॉर्मल सेंटेंस एंड प्रोनाउन रिवर्सल्स होगा, ठीक है ना. So this is the 3 main symptoms: impairment in social interaction, restricted repetitive behavior, and impairment of communication and language. So that is the autism disorder. उसके अलावा some other features also seen in autism like abnormal dermatoglyphics, like abnormal fingerprints होंगे, late development of handedness कि वो right है कि lefty है, late development होगा. And one very important thing is present in this child, that is the precocious skill or islets of प्रिकोसिटी, लाइक कि ना हाइपरलेक्सिया, मतलब जो स्टूडेंट लाइक 8 ईयर्स पे 9 ईयर्स पे जो चीजें पढ़ने आएगी वो ये 5 ईयर्स पे ही पढ़ने लग जाएंगे. या फिर मतलब उनमें एक कैलकुलेशन की एक्स्ट्रा पावर होगी, जैसे कि जो 7th 8th क्लास का जो मैथ्स है वो 4th क्लास में ही कर रहे हैं. सो काइंड ऑफ दैट important thing is also present in autism disorder वाले बच्चे में, है ना. सो हाइपरलेक्सिया, कैलकुलेटिंग एबिलिटी, रोट मेमोरी, है ना. सो काइंड ऑफ दैट, ठीक है ना. सो अगर हम इटियोलॉजी की बात करें, सो there is very strong genetic factor, है ना, जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो गया, कंजेनाइटल रूबेला, फिनाइलकेटोनुरिया हैव लाइक वेरी स्ट्रांगली कि इन बच्चे में ऑटिज्म डिसऑर्डर हो सकता है. एंड दिस ऑटिज्म डिसऑर्डर जो ऑनसेट है वो बिफोर 3 इयर्स ऑफ एज होता है. एंड 30% कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, जो 30% जो बच्चे हैं कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, ओके. एंड बिफोर 3 इयर्स ऑफ एज ये ऑनसेट होता है. एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट इज लाइक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम टीचिंग होना चाहिए, बिहेवियरल थेरेपी, है ना. एंड इन फार्माकोथेरेपी में हमारा लो डोज एंटीसाइकोटिक्स यूज करते हैं लाइक रेस्पेरिडोन और एरिपिप्राजोल. So this is the treatment of autism disorder. These 3 symptoms is very very important. Okay, so this is autism. है ना. सेकेंड हमारा है दैट इज रीड सिंड्रोम. सो रीड सिंड्रोम इज ऑल्सो सिमिलर टू ऑटिज्म डिसऑर्डर. कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोस्टली सीन इन
फीमेल. सो रीड सिंड्रोम बेसिकली सीन इन फीमेल्स. एंड इसमें क्या होगा ना, बेसिकली अप टू 5 मंथ तक तो चिल्ड्रन में नॉर्मल डेवलपमेंट होगा. एंड बेसिकली जो सिम्टम्स जो दिखेंगे ना, वो बेसिकली 5 to 48 मंथ पे दिखना स्टार्ट होंगे, है ना. सो बिफोर 5 years एज टिल नॉर्मली सोशली एवरीथिंग जितना भी माइलस्टोन होता है वो नॉर्मली डेवलप होगा. एंड आफ्टर 5 years के बाद ही बेसिकली ये जो सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे. ठीक है ना. इसमें क्या क्या फीचर्स होगा, तो फर्स्ट फीचर्स क्या होगा, माइक्रोसिफेली होगा. माइक्रोसिफेली मीन्स की हेड सर्कमफेरेंस जो होगा वो कम होगा. कंपेरिजन टू दिस बॉडी द हेड सर्कमफेरेंस इज लेस, क्योंकि जो हेड सर्कमफेरेंस है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, हाइट है, वेट है, वो सब एक एप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होना चाहिए, है ना. बट इनमें जो क्या होगा, इन बच्चों में माइक्रोसिफेली होगा, जो हेड का जो सर्कमफेरेंस होगा वो कम होगा. ठीक है ना. उसके अलावा लॉस ऑफ एक्वायर्ड हैंड स्किल्स एंड स्पीच, है ना. तो जो भी हैंड स्किल्स उन्होंने लाइक लेट सपोज उन्होंने 10 मंथ तक जो भी हैंड स्किल, पाल्मर ग्रास्प, पिंसर ग्रास्प जो भी सीखा था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना. सो लॉस ऑफ एक्वायर्ड हैंड स्किल्स एंड स्पीच, पुअर गेट, इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, है ना. सो ये सारी चीजें हो गई माइक्रोसिफेली. जो भी मोटर स्किल सीखेंगे या फिर गेट एबनॉर्मलिटीज होगी, प्लस सारे ऑटिज्म वाले डिसऑर्डर होंगे. ऑटिज्म वाले तीनों लाइक की इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड वन इज द रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर प्लस इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, है ना. एंड अलोंग विद दैट अगर कुछ बच्चों में सीजर भी प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज द रीड सिंड्रोम. सो रीड सिंड्रोम इज नथिंग लाइक पूरा ऑटिज्म वाला ही सिम्टम्स होगा तीनों के तीनों. एंड उसके साथ साथ लाइक माइक्रोसिफेली हो गया, एंड जो भी मोटर स्किल एक्वायर्ड करेंगे वो सब कुछ भूल जाएंगे, पुअर गेट होगा एंड सीजर्स. देन इट इज नोन एज रीड सिंड्रोम और रीड्स डिसऑर्डर. ठीक है. थर्ड हमारा है एस्पर्जर सिंड्रोम. सो एस्पर्जर सिंड्रोम इज नथिंग, इट इज लाइक जो हमने ऑटिज्म में हमने फर्स्ट 2 पढ़े थे ना, दैट इज इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन प्लस रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर. अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे देन इट इज टर्म्ड एज एस्पर्जर्स सिंड्रोम. ठीक है ना. बहुत सिंपल है, याद करना है बस. आप ऑटिज्म वाला याद कर लो, आप सारे याद कर लोगे. फोर्थ वन इज द हेलर सिंड्रोम और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर. सो हेलर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट टिल 2 years. जैसे हमारा रेड सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि अप टू 5 मंथ तक नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, ऐसे ही हेलर सिंड्रोम में टिल 2 years तक क्या होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा. एंड देन बिटवीन 2 to 10 years पे क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ एक्वायर्ड मोटर स्किल. जो जो चीजें सीखी थी, जैसे कि रेड सिंड्रोम में था ना, जो जो चीजें सीखा था वो भूल गए, ऐसे ही यहाँ पे भी लॉस ऑफ एक्वायर्ड मोटर स्किल, सोशल स्किल्स, है ना, बॉल ब्लैडर कंट्रोल, जो भी सीखा था सब कुछ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. प्लस सारे के सारे ऑटिज्म वाले सिम्टम्स लाइक इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, है ना, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, है ना. सो ये सारे सिम्टम्स होगा, देन इट इज टर्म्ड एज हेलर्स सिंड्रोम, है ना. सो बहुत सिंपल था, बस आपको ऑटिज्म याद करना है. एंड बाकी जितने भी है हेलर्स, एस्पर्जर्स, उनमें कुछ प्रेजेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो जस्ट आपको 2-3 बार याद करोगे, बहुत इजिली याद हो जाएगा. ठीक है. देन ये हमारा बिफोर DSM-5 कैटेगरी, जो हमारा DSM-5 क्राइटेरिया आया उससे पहले था, है ना. जब हमारा DSM-5 क्लासिफिकेशन आया उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जितने भी ये डिसऑर्डर्स है, जितने भी परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उन्होंने सारे के सारे क्लासिफिकेशन को किस में डाल दिया, अंडर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डाल दिया. सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सारे के सारे डाल दिए. एंड व्हाट इट डज की उसको जितने भी ऑटिज्म डिसऑर्डर है उसको अलग अलग स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया. जैसे कि अगर बहुत ज्यादा लेट सपोज अगर इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन भी है, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर भी है, तो उसको लाइक सीवियर में डाल दिया, है ना. तो इसमें लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन दे दिया. सो नाउ हम क्या यूज करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. बट एग्जाम में पूछ लेते हैं ये सारे हेलर सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, है ना, ऑटिज्म डिसऑर्डर. सो यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो. सो ऑटिज्म में ये सारे के सारे को कंबाइंड कर दिया. एंड जो लैंग्वेज वाला था ना, थर्ड द लैंग्वेज वाला, दिस वन इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ये रिमूव कर दिया यहाँ से. ओनली इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन प्लस रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर को इसमें डाल दिया, है ना. सो दैट इज द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है ना. सो हमने एक ADHD पढ़ लिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम्स यहाँ से परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. देन थर्ड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेंटल रिटार्डेशन. सो
earlier it was called mental retardation, but now like in more respectful में हम mental retardation नहीं बोल सकते. What we are calling that is intellectual disability. So intellectual disability का मतलब क्या है? It is the incomplete development of intellectual function. So that is assessed by the IQ level, है ना. So that is assessed by the IQ level, है ना. Intellectual question. So incomplete development of intellectual functions and adaptive skills, then it is known as intellectual disability, है ना. So incomplete development of intellectual function जो कि हम IQ से पता करेंगे, और adaptive skill. So adaptive skill मतलब कि like communication, लर्निंग हो गया, कुछ सेल्फ केयर, सोशल स्किल, है ना, उसमें इम्पेयरमेंट होना, है ना. सो दैट इज नोन एज अडेप्टिव स्किल्स. सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमने क्या देखा? आईक्यू देखा. सो आईक्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? समटाइम्स यहाँ से एमसीक्यू आता है. सो आईक्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100. ठीक है ना. सो मेंटल एज का मतलब है एंड क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स. सो 10 ईयर्स का बच्चा है, बट उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो क्या है? 7 ईयर्स वाले बच्चों की कैपेसिटी है. जो स्किल्स है उसके अंदर, जो एडेप्टिव स्किल्स है, जो मेंटल परफॉर्मेंस है, वो कौन सा है? 7 ईयर्स वाले बच्चों का है. सो उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा? 7 ईयर्स हो जाएगा. तो 7 ईयर्स अपॉन में वो कितने साल का बच्चा है? दैट इज 10 ईयर्स का है. तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो जाएगी? 10 ईयर्स इंटू में 100, है ना. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर IQ. ठीक है ना. बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लेट सपोज 18 ईयर्स का चिल्ड्रन है, 18 ईयर्स का बच्चा है, एंड उसका जो मेंटल एज क्या है? दैट इज 14 ईयर्स का है. तो 14 अपॉन में 18 नहीं होगा. द मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल एज हम कितना यूज कर सकते हैं? दैट इज द 15. 15 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं. सो डिनोमिनेटर हमारा 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. सो दैट इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो बेस्ड ऑन दैट जो IQ आएगा, सो that is classified like mild, moderate, severe and profound. and इसका जो रेंज है वो पता होना चाहिए आपको. एंड इस रेंज में क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या वो परफॉर्मेंस कर सकता है, वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ से MCQ आता है. ठीक है ना. सो क्लासिफिकेशन अगर हम IQ का बोले, सो नॉर्मल IQ कितना होता है? नॉर्मल IQ इज 90 to 109 एंड बॉर्डर लाइन लाइक 70 to 89 तक बॉर्डर लाइन होता है. सो इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं. देन माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब बोलेंगे? व्हेन IQ इज 50 to 69. So when IQ is 50 to 69 it is termed as mild MR. and जब mild MR होगा तो child क्या क्या कर सकता है? First of all the very important thing is that he or she can educate up to 6th class. तो 6th class तक वो पढ़ सकता है. प्लस इंडिपेंडेंट लिविंग, वो अपनी सारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो अकेले खुद से विदाउट किसी पे डिपेंड हुए कर सकता है. सो इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है ना. प्लस he or she or also able to do unskilled और semi skilled work, है ना. सो unskilled और semi skilled work भी कर सकता है. अकेले रह भी सकता है, इंडिपेंडेंटली रह भी, अकेले नहीं, इट मींस इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है. उसको डेली लाइफ ऑफ एक्टिविटीज के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. एंड अप टू 6th क्लास तक वो क्या कर सकता है? एजुकेट भी हो सकता है, पढ़ भी सकता है. सो दैट इज द माइल्ड MR 50 to 69. मॉडरेट कब बोलेंगे? व्हेन इट इज 35 to 49. सो इट इज ट्रेनेबल, है ना. ट्रेनेबल मींस कि अप टू 2nd क्लास तक एजुकेशन ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं. प्लस ही और शी नीड्स सपोर्ट फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग. सो डेली लिविंग के लिए उसको एक थोड़ा सपोर्ट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना. सो एक काइंड ऑफ गाइडेंस चाहिए. बाकी वो कर सकता है, आपने उसको बता दिया तो वो कर लेगा, बट एक काइंड ऑफ थोड़ा गाइडेंस चाहिए उनको. ठीक है ना. प्लस ऑल्सो एबल टू डू अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क. ठीक है. कमिंग टू द सीवियर वन, तो सीवियर में क्या होगा? दे आर नॉट एबल टू डू एनी एजुकेशन. सो नो फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज डिपेंडेंट. सो डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए, डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ के लिए वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा. एंड नीड्स अटेंशन फॉर डेली एक्टिविटीज ऑफ कोर्स. एंड नॉट एबल टू डू एनी स्किल्ड वर्क, एनी नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क नहीं कर पाएगा. सो दैट इज द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन. एंड प्रोफाउंड मीन्स की लेस देन 20. लेस देन 20 इज प्रोफाउंड मीन्स की वो बिल्कुल उनको कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए.
कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, है ना. सो नीड्स लाइफ सपोर्ट, नो फॉर्मल एजुकेशन ऑफ कोर्स एंड कंटिन्यूअस सुपरविजन चाहिए. सो दैट इज द प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन लेस देन 20 IQ. Okay, so one more important questions, that is the most common chromosomal disorder of mental retardation or intellectual disability. So that is the Down syndrome. डाउन सिंड्रोम. एंड अगर आपका सेकंड पूछ लिया कि डाउन सिंड्रोम के बाद कौन है, दैट इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, है ना. सो most common chromosomal disorder of MR is the Down syndrome followed by fragile X syndrome. आई बस समझ में. तो ये था हमारा मेंटल रिटार्डेशन के रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट शुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट यू शुड नो. सो दिस स्लाइड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस IQ वाला क्लासिफिकेशन वाला स्लाइड्स. ठीक है. कमिंग टू सम स्मॉल पॉइंट, सम स्मॉल डेफिनेशन that can be asked in the exam. So that the first one is the dyslexia. So dyslexia means कि reading disorder, है ना. So specific reading disorder, lex मतलब reading में disorder होगा, so हम dyslexia बोलेंगे. Second हमारा है conduct disorder. So conduct disorder if less than 18 years के बच्चे में अगर like they disregard the rights of others, so now it is termed as conduct disorder, है. So conduct disorder में क्या करेगा, there is pattern of disregard for rights of others, है ना. like बहुत aggressive होगा, या फिर dissocial behavior like stealing, frequently lying, bullying, cruelty to animals, है ना. so animals को मारेगा, छेड़ेगा, truancy, है ना. so if this behavior is present before 18 years of age, now it is termed as conduct disorder, है ना. and it can lead to antisocial personality disorder, है ना. so after 18 years पे वो antisocial में वो convert हो सकते हैं. so that is the conduct disorder, kind of antisocial वाला सारा behavior होगा before 18 years of age. ठीक है ना. The second term is the tic disorder. So tic क्या होता है? tic is something like brief, very brief, rapid motor movement or vocalization, है ना. so brief rapid motor movement और vocalization in response to internal urge, उसको ऐसे internal ऐसे stress urge होगा, and in response to that वो कुछ repetitive motor movement करेगा, like eye blinking हो गया, head buzzing हो गया, shoulder shrugging हो गया, है ना. और some like vocalization like grunting, है ना, throat clearing. so that is termed as tic disorder, है ना. so like echolalia, जो भी आप बोलेंगे उसको रिपीट करेगा. इकोप्रेक्सिया, जो भी आप एक्शन करेंगे, लेट्स सपोज आपने कुछ पूछते ऐसे किया तो वो सेम एक्शन रिपीट करेगा. सो दैट इज इकोप्रेक्सिया. और कोप्रोलेलिया लाइक ऑब्सीन, सोशली इनएप्रोप्रिएट, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करेगा. सो कोप्रोलेलिया. एंड कोप्रोप्रेक्सिया लाइक ऑब्सीन, सोशली इनएप्रोप्रिएट, अब्यूजिव काइंड ऑफ एक्शन रिपीट करेगा. सो दैट इज नोन एज कोप्रोप्रेक्सिया. सो दैट इज द टिक डिसऑर्डर. And the other term is the Tourette's disorder, Tourette's syndrome or Tourette's disorder. So Tourette's syndrome में क्या होगा, इट इज काइंड ऑफ टिक डिसऑर्डर ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, देयर इज मल्टीपल मोटर टिक होगा, लाइक आई ब्लिंकिंग, शोल्डर श्रगिंग, प्लस वन और मोर वोकल टिक्स भी होगा. तो लाइक आई ब्लिंक भी कर रहा है, शोल्डर श्रगिंग भी कर रहा है, प्लस साथ ही साथ लाइक ग्रंटिंग कर रहा है या फिर थ्रोट क्लियरिंग कर रहा है. सो लाइक मोटर टिक्स भी है वन और मल्टीपल मोटर टिक्स भी है, एंड साथ ही साथ क्या है, वोकल टिक्स भी है. सो नाउ इट इज टर्म्ड एज टॉरेट्स डिसऑर्डर. एंड बेसिकली जो इसका ऑनसेट है वो 4 to 6 ईयर्स पे होता है. एंड द ट्रीटमेंट इज non-pharmacotherapy, that is habit reversal therapy, and pharmacotherapy में like clonidine or guanfacine is the first line treatment for Tourette's syndrome. आई बस सुनिए. सो ये था हमारा रिगार्डिंग चाइल्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें ADHD इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हमने सारे पढ़े, ऑटिज्म एंड ऑल. एंड थर्ड हमने मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कुछ हमने टर्म्स पढ़े लाइक टॉरेट सिंड्रोम, टिक डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, है ना. तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए. अंडरस्टूड. So one more question I want to give the answer, that is कि many student is asking कि is this sufficient for the NOSET or not. So देखो, sufficient of course this is sufficient, and अगर हम बोले डायरेक्टली में तो कुछ भी sufficient नहीं है, कुछ भी sufficient है. So देखो, the main thing is that कि आपको ना बेसिकली आपको concepts आने चाहिए. आपने concept यहाँ से पढ़ लिया, आपको याद हो गया, समझ में आ गया. सेकेंड थिंग ना, आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस MCQ.
क्योंकि बेसिकली हमारा एमसीक्यू ही एग्जाम में आने वाला है। आपने थ्योरी जितना भी पढ़ लिया, आपने जो लाइक बड़े बड़े बुक से पढ़ लिया है, बहुत अच्छी अच्छी बुक से आपने थ्योरी पढ़ लिया है, बट आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सो नो सेंस, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। आपने मल्टीपल नोट्स बना लिए हैं सुंदर सुंदर तरीके से, बट आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। आप उसको मतलब जिस तरीके से आपको एग्जाम में देना है, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, सो वो आपको सीखना है, वो जो एबिलिटी आपको सीखना है। सो प्लीज इसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व क्या करो, तभी चीजें यूजफुल होगी, अदरवाइज कुछ भी इनफ नहीं है ना। अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया तो इट इज नॉट इनफ, बट अगर आपने इसको पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू देखा, सो इट इज इनफ, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।